Cool. So, आज we'll talk about how to understand the pain of the customer. Okay. So, how to understand the pain of the customer. So, how we'll do it is we'll do a little role play. Okay. Where I'll be the customer and you will be the closer. ठीक है. तो ये प्रोबिंग वाला पार्ट है. ठीक है. Where everyone says कि ask right questions. But how to ask right questions, no one tells. So today on this meet, I'll tell you how to do that. So initially आपको मैं एक छोटा सा चीज बता रहा हूँ. You what you need to do, just follow that. So for example, when you talk to your younger brother or sister, आपके छोटे भाई बहन है. ठीक है. तो ब्रदर है कि सिस्टर है? दोनों है। दोनों है. गुड. सो मान लो अगर आप अपने छोटे भाई बहन से बात करते हो और आपको कुछ पता करना होता है, तो आप प्रोब करते हो. आप डिफरेंट एंगल से पूछते हो. okay, सेम वही काम यहाँ करना है. कॉपी पेस्ट. बस पर्सन अलग हो जाएगा. ठीक है. सो ये चीज़ें उन टिकट साइजेस पे काम करता है जो लो टिकट और मिड टिकट्स हों. उनमें बहुत अच्छे से काम करता है. तो हाँ। आपको आपको कैसे करना है ये? आप तो बचपन से करते आ रहे होगे ये चीज़ें, प्रोबिंग वाली. अब बस ये चीज़ मेरे पे अप्लाई करनी है. ठीक है. तो आज हम आप एक प्रोडक्ट सेल कर रहे हो एंड दैट प्रोडक्ट इज ऑफ कोचिंग प्रोग्राम ऑफ क्रिप्टो. ठीक है. क्रिप्टो कोचिंग का है. एंड you have to find out like what is the problem I'm going through and why I should buy this product. ठीक है. ओके, बट आई लाइक मुझे थोड़ा सा डाउट है इसमें। आई हैव टू आई हैव टू फाइंड आउट द कस्टमर्स पेन, हम्म. दैट व्हाई ही इज अनेबल टू परचेज दिस प्रोडक्ट, ऐसा। नॉट ओनली परचेज कि वो आया क्यों है कॉल पे. वाई डज वाई विल ही नीड दिस प्रोडक्ट. उसको जरूरत है भी कि नहीं अच्छा। है. उसके लिए ये ओके, प्रोडक्ट राइट फिट है भी कि नहीं है. ठीक है। ठीक है. लाइक वी क्वालिफाई द पर्सन राइट एंड वी वांट द पर्सन हाँ। टू आस्क अस दैट सर और मैम टेल मी हाउ यू कैन हेल्प मी. ओके. हम्म। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल योर यंगर ब्रदर वांट PS5. ठीक है. एंड यू आर गोइंग फॉर शॉपिंग. नाउ ही सेज मुझे ये चाहिए. बट ये क्यों चाहिए, अभी ही क्यों चाहिए? हाउ विल इट हेल्प यू इन योर डेली लाइफ? क्या क्या मतलब. यू नीड टू प्रोब डीपर. ठीक है. चलो यू कैन स्टार्ट व्हेनेवर यू रेडी. सर, कॉलिंग क्वालिफाइंग कॉल तो मैंने की है कई बार फॉर द लो टिकट इटसेल्फ। सो आई एम नॉट लाइक मुझे उस प्रोडक्ट के लिए कुछ बोलना नहीं है इस कॉल में। आई जस्ट नीड टू डू द प्रॉपिंग पार्ट, दैट इज इट, नथिंग एल्स, राइट? या. ठीक है। इसको स्टार्ट कैसे करेंगे कॉल को? मेरा ओके. मेरा दिमाग ब्लैंक हो रहा है। ठीक है. तो स्टार्ट मान लो हाँ। आपने करना है लाइक हेलो. आई सेड हेलो. am I talking to Mr. Arpit? Yes. How are you? I'm fine. What about you? Good. So then build a rapport. अपने हिसाब से जो आप रैपो बिल्ड करते हो. ठीक है. लाइक सेट द एक्सपेक्टेशन फॉर द कॉल. How do you set the तो expectation? How do you set the expectation? Like this call is regarding XYZ, where I'll be asking some questions and identifying the problem and solving it. Okay. When it's done,
Then will we see that whether we both are right fit for each other, or else I'll refer you someone in my network. Done. Then Done. you will ask about what are the challenges you're facing right now. Hmm. Okay. Then I'll tell about challenge. Then you will be probing. The probing part will start. ठीक है. You can start. Hey, hi, Arpit. How are you? I'm good. And what about you? I'm also good. So this is Sony from XYZ company, and this call is an identifying call where I'll be asking you some questions so that um, to get where I'll be asking you some questions so that I'll get to know that we are a good fit for each other or not. So shall we start with the questions? Yeah. Okay. So could you please tell me that what are the challenges and what are the problems that you have been facing? Number one challenge I've been facing is like I lost a good amount of money while investing in crypto. Second challenge is I don't have that much deeper knowledge about the product. And third is like I don't know when to invest so that I can get profit. O- Okay. So the first problem that you have mentioned that you have lost good amount of money, right? Hmm. So you must be in very low hope that like कहाँ से मुझे कोई help कर दे आगे so that you'll be able to find out or you'll be able to come back, Hmm. right? Mm-hmm. So could you please tell me that आप ये कब से कर रहे हैं and ये जो आपका good amount loss हुआ है वो कब हुआ है exactly? I lost it like 3 months before, and I lost a six-figure revenue amount in six figures. ओके. सो आप क्या आपने उससे पहले भी लाइक उससे पहले भी आपका लॉस हुआ है कभी Mm, या फिर दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम? नहीं हुआ है बट इतना बड़ा नहीं हुआ है. Small amount of losses were there. सो मे आई नो दैट व्हाट आर यू थिंकिंग ऑन दिस? लाइक आप सोच रहे हो कि आपने एक तो गुड अमाउंट ऑफ मनी भी लूज कर दिया एंड मोर ओवर आप इसमें खुद की हेल्प करने के लिए आप क्या कर सकते हैं इसमें? लाइक आप मुझे एक बार बताएंगे सो दैट आई कैन हेल्प यू विद बेटर सॉल्यूशंस. Mm, I don't know much because मैंने बहुत ज़्यादा डीप नॉलेज नहीं ली है. मैंने सिर्फ यूट्यूब से सीखा जो सीखा, and थोड़ा बहुत लोगों के वेबिनार्स अटेंड किए. दैट्स इट. ओके, डन. कूल. सो सर आई एम फॉरगेटिंग द सेकंड एंड थर्ड प्रॉब्लम. सेकेंड प्रॉब्लम इज लाइक मुझे बहुत डीप नॉलेज नहीं है. और मुझे नहीं पता कि राइट टाइम पे कैसे इन्वेस्ट करते हैं सो दैट आई कैन मेक प्रॉफिट्स. एंड थर्ड वाज द थर्ड वन वाज दैट राइट टाइम पे कैसे इन्वेस्ट करते हैं. so as you as I have explained you about the course, I hope that you have get that much clarity that you are over here, like you are in a right place. So shall I proceed with the next step? Yeah, what is the next step? So the next step is that
सर आज क्या हो रहा है मेरे को? मेरे आप मुझे ना थोड़ा सा डेमो दे दो, मेरे को समझ नहीं आ रहा है इसमें मैं क्या हूँ। डेमो मतलब मैंने मुझे दिया समझ नहीं आ जैसे। रहा है इसमें इसका प्रॉब्लम क्या है। इसकी इस मतलब इस हमें सैडनेस पे काम करना है, राइट? इसके हम्म। लॉस पे काम करना है। तो मैंने इसको नेक्स्ट स्टेप के लिए बोल दिया, फिर उसके बाद मैं डायरेक्ट पिचिंग तो नहीं कर सकती। आपको नेक्स्ट स्टेप नहीं क्या कर बोलना था, सकती हूँ? आपको थोड़ा हाँ। और प्रोब करना था कि लाइक, हाँ। जैसे मान लो किसी की समस्या समझ रहे हो, तो वो जो बोल रहा है हर चीज आप अज्यूम नहीं करोगे। यू कैन, इफ यू हैव कॉपी पेन, राइट दिस assumption skills, राइट इट डाउन, assumption skills। ओके। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से मेरा लॉस हुआ, एंड अगर कोई थर्ड पर्सन कह रहा है मेरा लॉस हुआ, सो मेरे लिए जो लॉस है एंड उस पर्सन के लिए जो लॉस है, दे बोथ आर डिफरेंट, बट द हम्म। वर्ड इज सेम। इफ आई से आई वांट हम्म। टू बी सक्सेसफुल एंड इफ यू से आई वांट टू बी सक्सेसफुल, हम दोनों के टर्म्स बहुत अलग होंगे सक्सेस के। हम्म। सो जो वर्ब वाले उस चीज है ना, वर्ब्स एंड एडजेक्टिव्स, you need to हम्म। probe deeper in that. Okay, what do you mean by that? Why do you say so? Till you get a clarity from the person, or till the time the person gets the clarity as well. For example, in this scenario, you have asked me ki, from how long you were facing this problem. A very nice question, a very good question. Okay, you can have water अगर लग रहा है कुछ। सर है नहीं पानी अभी मेरे पास, मैं मम्मी को बोल दूंगी। Okay, so in this case, when you ask how much, from how much time you were facing this problem, then I said 3 months. 3 months पहले मेरा लॉस हुआ। तो अगर किसी का लॉस होता है, आपका क्या रिएक्शन होता है? ओके, टेल मी, ऐसे भरते हो? नहीं। ओह, दैट्स अ वेरी ह्यूज लॉस। यस, नेचुरल यू तीन। मस्ट बी गोइंग थ्रू सो मच। हाँ। ऐसा। हाँ, नेचुरली जो आप टू बी नेचुरली रिएक्टिंग करते टू हो। दिस। मैं हाँ। तो कहता हूँ कि 3 महीने, आई बिहेव लाइक दैट। आई टोल्ड यू ना, हाँ। जैसे घर में बात करते हो, जैसे लोगों से बात करते हो अपने छोटे भाई बहन से, वैसे। मम्मी पानी का बोतल। इफ समवन इन द फैमिली, छोटा भाई बहन मान लो किसी सब्जेक्ट में फेल हो गया, बोले दीदी मैं फेल हो गया, व्हाट, हाउ, व्हाट इज, ओके व्हाट विल यू डू नेक्स्ट, ऐसे बोलते हो नहीं? क्या? हाँ। ऐसा हाँ। कैसे हो गया? हाँ। ऐसे ही हाँ। बात करनी है, यू हैव टू टॉक लाइक दिस ओनली। अच्छा, बट somehow आज मेरा माइंड थोड़ा ब्लैंक है, तो मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। आप, मैं सैडनेस को हैंडल करने के लिए अभी नहीं बैठी हूँ। हाँ हाँ, हाँ। देखो, दिस शुड कम तो नेचुरली टू यू, सो दैट जैसे घर में बात करते हो, दैट्स हाउ यू हैव टू टॉक ओवर हियर। द ओनली थिंग, द वर्ड्स विल चेंज, हम्म। the words will change, and when the words will change, your behavior will also change accordingly, but the intent will be same। ओके। ठीक है। अब इस केस में what had happened, I am facing this problem from past 3 months, and I am not able to resolve it because अब मेरा नुकसान हुआ है, तो in what state I will be? After a loss, person कैसे बहुत state में ज्यादा होता है? डिसबिलीफ, Disbelieves। लॉस्ट होप। मतलब उसको समझ नहीं आया कि मैं करूं क्या क्या नहीं करूं, क्योंकि इतना ज्यादा पैसा जो चला गया उसको अब बेचारे का। ऐसे इंसान से कैसे बात करोगे? ये आपको करना है। अब अगर ये नहीं सोचोगे कि हाँ। पर्सन अभी लॉस में हाँ। जा चुका है, तो ऐसा सोच रहा होगा, तो आप बात नहीं कर पाओगे, यू विल नॉट एबल टू आइडेंटिफाई द नेक्स्ट क्वेश्चन। या। तभी यू गॉट ब्लैंक एंड यू सेड नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। नहीं, ये नहीं करना है। हाँ। क्योंकि उसके लिए तो, अरे आप तो बेचने आ गए, यू हैव केम हियर टू सेल मी द प्रोडक्ट, बट यू आर नॉट एबल टू हाँ। अंडरस्टैंड कि व्हाट्स द पेन पॉइंट। हम्म। यू शुड नेचुरली, आज जैसे मान लो, एग्जाम्पल दे रहा था आपके ब्रदर का या सिस्टर का, मान लो आपकी सिस्टर है, फेल हो गई कोई सब्जेक्ट में। ठीक है, कोई भी एक सब्जेक्ट, हिस्ट्री ले लेते हैं, फेल होगी। हाँ। हाँ। आप क्या बोलोगे? क्या? फेल कैसे?
हाँ। कहाँ पे नंबर कम, कहाँ पे नंबर कटे हैं? हाँ, पढ़ाई नहीं की थी। पढ़ाई नहीं की थी। देखो अपने आप क्वेश्चंस फ्रेम हो रहे हैं। हाँ। फिर तो हो गया है, 100 बार बोलने के बाद भी पढ़ाई नहीं होती है। हाँ। सो बट सो ये ये हम जो क्लाइंट क्वेश्चंस को नहीं फ्रेम हो, बोल सकते। हाँ क्वेश्चंस जो फ्रेम हो रहे हैं वो सिमिलर यहीं पे होंगे, बट यहाँ पे वर्ड्स चेंज हो जाएंगे बस। हाँ, थोड़ा बहुत। हाँ तो जैसे वहां बोले ना, क्यों क्यों कहाँ नंबर कटे, तो आपको यहाँ पूछना है कहाँ पे आपने इन्वेस्ट किया था। अच्छा। ओके। ठीक है। वहां पे अगर कोई हाँ। इंसान बोल रहा है ओके, क्यों पढ़ाई नहीं करी थी, यहाँ बोल सकती हूँ क्यों रिसर्च नहीं करी थी। हाँ, कि आपने रिसर्च किया भी था। नहीं, क्यों किया नहीं था तभी तो हुआ उसका लॉस। नहीं, फिर मैं पूछ नहीं सकती कि लाइक अब वो बोल आपने दे। इन्वेस्ट करने से हाँ पहले ये भी, आप ये उसके। भी कर सकते हो, हाँ। अब ये भी अच्छा पॉइंट है। हाँ। यू कैन से हाँ। हैव यू डन योर रिसर्च एज वेल बिफोर इन्वेस्टिंग। या ये सो वो कह सकता है ये हाँ, पूछ। ओ इफ यू हैव डन दैट व्हाई डिड यू हैड अ लॉस। जैसे आपका आपकी सिस्टर ने कहा मैंने पढ़ाई किया था, अच्छा तो पढ़ाई किया तो फेल क्यों हो गए। मेक सेंस। यस। फिर वो कह सकता हाँ। है, कह सकती है कि आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आ गया था। और इधर हाँ। वाला कह सकता है कि पता नहीं उसी सेकंड वो इन्फ्लेट हो गया था, डिक्रीज हो गया था प्राइस, उसी सेकंड मेरा हो गया था। हाँ, जिसकी वजह से मैं कुछ नहीं कर पाया। हाँ। तो दोनों केस में कि पर्सन क्या बोल रहा है, अब अपने आप को बचा रहा है। हाँ, वो बचा रहा है अपने आप को। तो लाइक ही इज गिविंग द एक्सक्यूज। हाँ, तो इस केस में आप कैसे पकड़ोगे, व्हाट विल यू से टू योर सिस्टर, आप वो बताओ। आउट ऑफ सिलेबस कुछ नहीं आता है। जो भी आता है सारा बुक में पढ़ाया जाता है। इट मस्ट बी फ्रॉम लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर, यू हैवंट स्टडीड प्रॉपरली। अब इसको मैं ये रिफ्रेश बोल। रिफ्रेश करो इसको इस चीज में। आपको तो पता होगा ना, क्योंकि यू हैव बीन इन्वेस्टिंग सिंस लॉन्ग। एंड आपको तो मालूम होगा कि जहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हो आप, इन अ मिनट इन्फ्लेट हो जाए या फिर डिक्रीज, यू यू मस्ट हैव द आइडिया, राइट? लाइक दिस। मैं पूछ रहा हूँ कर तो ले रहे हो अब, ठीक है, यही करना वैसे। है। ओके। देखिए, ठीक है। दैट्स व्हाई आई गिव यू अ वेरी रियलिस्टिक एग्जांपल कि आपकी प्रैक्टिस में है वो ऑलरेडी, नाउ यू जस्ट नीड टू चेंज द वर्ड्स। ठीक है। सो इन दिस केस व्हेन द पर्सन से इसकी 3 महीने वाला, तो आपने समझ के क्या बोलना है। नाउ नेक्स्ट, ठीक है अभी फेल हो गई है वो, अब एक एग्जाम 3 महीने बाद है, यूटी टेस्ट, इस क्लास टेस्ट जो भी कहते हैं आपके टर्म्स में। नाउ व्हाट नेक्स्ट, क्या यू बोलोगे। बेटर बी प्रिपेयर्ड फॉर द नेक्स्ट टाइम। हम्म। यू लाइक, अगर मैं सिंपैथेटिक मैनर में बोलूंगी तो मैं ये बोलूंगी कि फिर तो ऐसे बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, अगर तूने ढंग से नहीं किया ना तो फिर यू वोंट बी एबल टू पास दिस क्लास, ओके? हम्म। एंड फिर उसके बाद तुझे पता है इसके कितने सारे सर्कमस्टांसेस भी होते हैं आगे जाके। हम्म। सो आई टेल हर इन अ सिंपैथेटिक मैनर, बिकॉज मैं वहां पे एंग्री नहीं हो सकती हूँ क्योंकि वो ऑलरेडी फेल हो चुकी है। गुड, अब इसी को इसमें रिफ्रेश करो तो क्या बोलोगे, सिमिलर ही है। क्या था इसके वाले का, इस बंदे का क्या था सिचुएशन कि उसको क्या करना है उसके बाद? हम्म। नहीं आ रहा समझ। हाँ क्या वही, करना है, क्या एक बार करना है, रिपीट करो। यही करना है, क्या करना है इसके बाद, यही चीज है। अच्छा। सो लाइक, so do you think that will it work to the long term? And don't you think that what should be done right to cope up with this? ऐसा करके पूछूंगी। ओके, थोड़ा सा और बेटर कर सकते हैं इन क्वेश्चंस को, थोड़ा सा और एम्पैथी इसमें डाल सकते हैं ना। ओके, हाँ। डू यू थिंक द वे यू आर डूइंग द रिसर्च टिल नाउ will also make you profits in the coming time?
वो बोलेगा नो। डू यू थिंक वट एवर नॉलेज यू हैव दैट इज एनफ टू गेट यू प्रॉफिट्स? वो बोलेगा नो। सो व्हाट शुड यू डू नेक्स्ट? मैंने दो चीजें पूछ ली कि क्या आपको लगता है कि आपकी ये सारी रिसर्च आपको दोबारा ऐसे काम आने वाली है, या आपको प्रॉफिट देगी? तो वो बोलेगा नो। एंड देन फिर उसके बाद व्हाट वाज द सेकंड पॉइंट, कि अगर आप ऐसे इन्वेस्ट करेंगे तो क्या आपको ये प्रॉफिटेबल होगा? तो फिर अगेन वो बोलेगा नो। सो वेल, आई हैव द सॉल्यूशन फॉर दिस प्रॉब्लम। नहीं, मैं यही बोलूंगी। सोल्यूशन क्यों दे रहे हो? क्योंकि अभी तक उसने सोल्यूशन मांगा नहीं है। अभी तो तो पेन व्हाट डू यू स्क्रैच कर थिंक रहे दैट हैं। व्हाट शुड यू डू? हाँ, हाँ। हाँ। मैं बोलूंगी कि आपको क्या लग रहा है, आपको क्या करना चाहिए? हाँ। मैं भूल गई थी। अरे यार, हाँ। मैं यही पूछूंगी कि आपको क्या सही लगा, आप क्या सोच रहे हो कि आपको क्या करना चाहिए? या आई फिर इसको जस्ट और बेटर वांट टू कर नो सकते हैं। जेन्युइनली। हाँ, आई वांट टू नो genuinely and I really want to help you हाँ out. So I tell me honestly that what do you really want in the next coming months, next coming in the next 6 months, and हम्म, just think about it and tell me. पी लो पानी, पी लो पानी, हाँ। have water. आती हूँ। हाँ। जस्ट गिव मी 2 मिनट्स। Yeah. So guys, whenever we have this issue of understanding the pain point, we need to probe deeper. And this is one of the psychology which I am doing a role play with her. You need to understand कि whenever the person is talking to you, you need to empathize. If you don't have any answers, you need to be in the other person's shoes to understand like what the problem is and where the problem is gonna arise. सर 1 मिनट, आपने क्या बोल दिया? मैं तो किचन में गई थी पानी लाने। कोई हाँ नहीं, हाँ पी हाँ लिया। हाँ। पी लिया। हाँ, डन। Cool. So in this scenario, everything, whenever you are having a situation where you go blank, एक चीज आप कर सकते हो, एम्पैथी हो जाओ, एम्पैथेटिक हो जाओ, उसके इंटरेस्ट पे बात करो। ठीक है? हम्म। एंड देन टॉक टू द अदर पर्सन इन द मैनर दैट यू आर genuinely caring for the person, genuinely wanting to help the person out. अब आप आपके छोटे भाई बहन है, वो किताब में कौन सा हम्म। चैप्टर पढ़ रहे हैं आपको हो सकता हो ना याद हो, बट आप ऐसे बिहेव करते हो कि आपको सब पता है, वो आपसे आके बात करें। हाँ हाँ। वही काम यहाँ करना है। ठीक है। हाउ विल यू डू दैट? अब जैसे अभी तो टोनालिटी, बहुत सारी चीजें आपकी फिक्स करनी है, बट अभी हम टोनालिटी पे नहीं जा रहे हैं, अभी हम सीधा अंडरस्टैंडिंग पे बात कर रहे हैं। सो हाउ वी अंडरस्टैंड दिस? व्हेन वी टॉक टू द अदर पर्सन, वी हैव टू इन दैट पर्सन शूज। वन सेकेंड, वन सेकेंड। या, सो when we do that again and again, we understand the person's pain point more easily, and जब person को खुद realization होता है कि हाँ, बात सही बोल रहा है, ये बात सही बोल रही है, I should follow this. एंड द क्रेजी पार्ट इज, ये चीज उसको कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली पता है, बट दैट पर्सन वांट्स कि कोई उसको समझाए। एंड मच क्रेजी पार्ट इज, यहाँ आपने कुछ समझाया नहीं, उसने खुद ही बोला है। सो व्हेन दिस पर्सन स्पीक्स बाय देमसेल्फ, दे रियलाइज इट फास्टर। फॉर एग्जाम्पल, आई एम ट्रेनिंग यू राइट नाउ। ठीक है? आई एम मेंटरिंग यू, अभी आई एम मेकिंग यू अंडरस्टैंड दिस साइकोलॉजी, पर ये आप तब तक नहीं समझोगे जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे। हम्म। यस। ट्रू। राइट? सो यू नीड टू प्रैक्टिस ऑल दिस व्हाट आई एम टेलिंग यू।
इसके नोट्स बनाओ, जैसे बैठे मैंने जो जो बोल रहा हूँ कभी कभी लिख सकते हो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है। दैट विल हेल्प यू अलॉट। ये क्लियर हुआ यहाँ सर तक? ये रिकॉर्डिंग सेशन मुझे एक बार दे देना आज का। हाँ, रिकॉर्डिंग सेशन मिल जाएगा बट हैव नोट्स एज वेल, ठीक है। हाँ मैं नोट्स भी बना लूंगी, बट मैं कोई बात अगर 3 से 4 बार सुनती हूँ तो वो मुझे फिर हो जाता है ध्यान में, याद हो जाता है। कूल। तो अभी जितना अभी हमने डिस्कस किया, व्हाट डिड यू अंडरस्टूड? सो ऑल आई हैव अंडरस्टूड इज कि यू नीड टू अंडरस्टैंड पर्सन्स sadness basically, कि what he is going through, because ये and we need to probe it very carefully, कि हमें अच्छे से उसकी प्रॉब्लम को स्क्रैच टू द स्क्रैच समझना है, एंड वी हैव टू गो इनटू द पर्सन्स शू। हम्म। हाँ, जिससे वो मतलब उसको जैसा फील हो रहा है वैसा हमें भी दिखाना है। एंड once the person gets a realization, he will definitely ask for the solution। वो खुद से हम्म। ही पूछेगा कि मैम what can be done next, could you please tell me, या फिर आप मुझे बता दीजिए, गाइड कर दीजिए, like this। द मेन एजेंडा की द पर्सन शुड आस्क अस, सर व्हाट, यू टेल मी हाउ वी कैन यू कैन हेल्प अस। इफ द पर्सन इज नॉट आस्किंग मींस we as a closer has failed the job to make the person have a build a clarity about what he or she should do next. Getting it? Next. Now when we probe, how to understand when not to probe? That's also important. अगर आप अपने यंगर ब्रदर सिस्टर से बहुत ज्यादा क्यों फेल हो गए, क्यों नहीं पढ़ाई करी, क्यों नहीं मेहनत करते हो, तो हाउ विल दैट सिबलिंग ऑफ हम्म। योर्स विल फील? कैसा लगेगा उसको? वो बहुत एट वन पॉइंट ऑफ टाइम वो एक्सेप्ट करेंगे कि हाँ दीदी को गुस्सा आ रहा है इसीलिए, बट वो खुद इरिटेटेड रहेंगे तो वो फिर जवाब भी नहीं देंगे, तो वो वहीं से निकल जाएंगे। यहाँ भी पर्सन कॉल एंड कर देगा। वहां पे भी वो कॉल एंड आई नो। मुझे मुझे यही लाइक मुझे पहले भी सिखाया था कि जब वो सामने वाला इरिटेटेड होना तो वो उस टाइम प्रॉब्लम मत करना गलती से। नहीं, उस टाइम आपको प्रोबिंग डिफरेंट तरीके से करनी है। हाँ, लाइक इफ ही इज एक्सट्रीमली सैड तब आप अच्छे से कर सकते हो, बट यू नो, अगेन, और बाकी सारे उसके मूड पे डिपेंड करता अगेन सोनी, अगर हम सामने वाले के मूड के साथ कॉल्स पे जाएंगे कभी भी क्लोजिंग नहीं आएगी। वी नीड टू गो विद द है। फ्लो ऑफ हाउ द पर्सन विल गेट द क्लैरिटी। तो क्लैरिटी इंसान को तभी मिलती है व्हेन द पर्सन फील्स दैट ही और शी इज बीइंग लिसन्ड और हर्ड, उसको कोई सुन रहा है। यस। नंबर वन। हम्म। नंबर टू, वी आर इन अ एम्पैथेटिक टोनालिटी। टोनालिटी हमारी बहुत एम्पैथेटिक हो। थर्ड, we need to make sure the person understand whatever we are saying, so we keep on doing temperature checking। समझ में आ रहा है? आर यू गेटिंग पॉइंट? सारी चीजें क्लियर है, ये बार बार पूछना है ताकि ऐसा ना लगे कि सिर्फ इंटेरोगेशन कर रहे हो। इंस्टेड ऑफ आस्किंग मोर ऑफ वाई क्वेश्चंस वी कैन आस्क हाउ, एंड व्हेन। व्हेन। ओके। वाई हाँ। क्वेश्चंस जो बहुत ज्यादा पूछते हैं, दे विल मेक द अदर पर्सन इरिटेटेड। व्हेन यू वर यंगर, किसी चीज में आपने कुछ गड़बड़ कर दिया, कांड कर दिया, और आपसे किसी ने बहुत ज्यादा सवाल पूछ लिए, ठीक है, बहुत ज्यादा, आप इरिटेट हो जाओगे बिल्कुल। और शायद उससे डिटैच भी हो जाओ। यू विल नॉट बी एबल टू आंसर फुल्ली, यू विल नॉट बी ओपनिंग अप योर वल्नरेबल स्टेट। सो हमने एक तरह से अपना काम तो कर दिया लेकिन हम तो गोल तक पहुंचे ही नहीं, इसे लाए। सो व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू मेक श्योर we need to be empathetic and ask empathetic questions as well. For example, okay, that he has lost around 1 lakh in past 3 months. How does it make you feel? वो बोलेगा अच्छा नहीं रो लग रहा दिया है। तो सामने वाला रो दिया फिर क्या करूंगी मैं? कोई नहीं, मुझे हंसी आती है।
हंसना मत। ठीक है। मुझे जनरली सामने वाला जो रो रहा होता है ना, फिर मुझे आई तो लाइक मैं ना उसे कुछ बोल ही नहीं पाती हूँ, मैं म्यूट करके हंसने लग जाती हूँ। अरे फिर उसके बाद ये अलग नहीं, कैटेगरी इससे है। पहले भी सन डेटिंग में मैंने वर्क किया था, तो वो अमन के साथ किया था, ठीक है। तो वहां पे तो रिलेशनशिप को लेके आते थे लोग, मैम इसने वो कर दिया, एंड मेरे को बहुत हंसी आती थी, एंड आई वाज लाइक क्या बोलो, मस्त एंटरटेन होती थी मैं। नहीं नहीं, आपको एंटरटेन के साथ आपको एंड में आपको सैलरी भी चाहिए। तो यू हैव टू मेक दैट, वरना सैलरी नहीं आएगी तो हम लोग हंसेंगे फिर। सैलरी नहीं, नहीं सैलरी भी आती थी, बट मैं एंटरटेन भी होती थी और मैं कॉल्स भी लेती थी। नहीं, दैट्स फाइन, नो बट बिग किसी इशू के इन दैट। किसी के दुख पे हंसना नहीं है। दैट्स नॉट अ गुड थिंग। आप तो एंटरटेन हो, द बट दोनों लोग हाँ। एंटरटेन हो। एंड व्हेन यू फील, लेट मी रिफाइन ओवर हियर, क्योंकि आपको लग रहा है उसको हम्म। समझ में नहीं आ रहा, उसको पता नहीं चल रहा है, बट एनर्जीज हम्म। ट्रांसफर, एनर्जीज एक या पोर्टल से दूसरे पोर्टल जाती है। आप बहुत बिलीव करते हो एनर्जीज में। यस, आई डू दैट एंड आई फॉलो दैट। आप and like how does energies transfer when we are finding something very funny and हम सुन भी रहे हैं उसको, बट उस पर्टिकुलर बात पे मुझे हंसी आ गई, somehow मुझे वो फनी लगा, लेकिन सामने वाले के लिए बहुत ज्यादा दुखदाई बात है वो, हम्म। जिससे वो बहुत सफर कर रहा है। हम्म। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि वो देर इज नो पॉइंट ऑफ बीइंग वेरी सैड, आई कैन टोटली अंडरस्टैंड, बट ओके। लाइक उसमें कैसे चला जाएगा, उसमें कैसे एनर्जी ट्रांसफर हो सकती है, आपने ये बोला ना अभी। ये खुद एक बहुत बड़ा टॉपिक है, लाइक हाउ एनर्जी विल ट्रांसफर, बट आई एम सेइंग इट विल ट्रांसफर, सो एक्सेप्ट इट अभी के लिए मान लो। एंड लेटर आई एक्सप्लेन यू प्रॉपर इन अ सेशन कि हाउ एनर्जीज वर्क। क्योंकि मैं अपने मेंटीज को जो बैठे थे उनको मैं अराउंड 30 मिनट्स तो एनर्जी के बारे में समझाता हूँ, हाउ इट वर्क, बिकॉज समटाइम्स यू नीड नॉट टू इवन स्पीक मच, नॉन वर्बल क्यूज से भी क्लोजिंग हो जाती है। ठीक है। एंड हाउ दैट हैपन, एनर्जीज, द पर्सन लाइक योर एनर्जी, लाइक वो आजकल जेंजी कहते हैं ना, वाइब आ गई। तो हाँ। वाइब आती है, तो किसी से गंदी वाइब वाइब्स। आती है, किसी से अच्छी आती है। हाँ ये तो है, ट्रू। आपने बहुत अच्छी सेल्स कॉल ली, बट आपसे वाइब गंदी आ रही, नहीं लेगा। नहीं लेगा प्रोडक्ट। आपने हाँ। गंदी सेल्स कॉल ली लेकिन वाइब बहुत अच्छी आई, तो ट्रस्ट हो जाएगा, पेमेंट कर देगा। सिंपल। ठीक है, ये बहुत ही शॉर्ट में मैंने एनर्जी हाँ। एनर्जी को समझाया है आपको। इस एनर्जी इज अ वेरी बिग टॉपिक, आई कांट हम्म। एक्सप्लेन इन सम मिनट्स। सो अभी के लिए जस्ट एक्सेप्ट व्हाट आई एम सेइंग एंड जस्ट फॉलो इट। सो whenever someone is pain, try to हम्म। feel, not feel very deeply that pain, but understand कि उसको पेन है, मतलब उसके लिए पेनफुल है। क्या उसकी सैडनेस का इम्पैक्ट हमारे पर भी पड़ सकता है, नहीं पड़ेगा, अगर बिकॉज अगर बिकॉज वी हम आर फीलिंग रियलाइज। एम्पैथेटिक। वी आर फीलिंग एम्पैथेटिक, एम्पैथेटिक मतलब हम उसके सिचुएशन में जाके सोच रहे हैं। अगर हम ओवर थिंक करेंगे देन पड़ेगा। कब होगा? हाँ, जब मेरे साथ ये हो रहा है, मेरे साथ होता है ये, मैं नहीं करना चाहती ऐसे, फिर सो डोंट मैं ओवर थिंक। एम्पैथेटिक करके करूंगी। हाँ, हाँ। डोंट ओवर थिंक, एम्पैथी रहो, क्योंकि एम्पैथी रखोगे, आफ्टर द कॉल इट्स एवरीथिंग गॉन। कॉल तक थे एम्पैथेटिक, नेक्स्ट कॉल न्यू न्यू पर्सन, न्यू कॉल, न्यू इन्फॉर्मेशन, न्यू नॉलेज, न्यू एनर्जी। कॉल तक जो पर्सन है उसकी इमोशंस कॉल तक ही रखनी है, नेक्स्ट कॉल तक वो इमोशंस को आपको हटा के न्यू पर्सन के साथ, न्यू कैरी एनर्जी नहीं के साथ करना। जाना है। डोंट कैरी या फॉरवर्ड दैट इमोशन, एंड या दैट्स हाउ यू विल लर्न हाउ यू कैन चैनलाइज योर इमोशन एज वेल। ट्रू। ओके, सो अभी के लिए जो जितना मैंने बताया कि एनर्जीज को मानो कि दैट इज देयर, जस्ट फॉलो दैट। लेटर अब इसके स्पिरिचुअलिटी, साइंस और साइकोलॉजी में जाएंगे। ठीक है। ठीक है। तो डन। इसका बेसिक क्राइटेरिया यही है, व्हेन समवन इज अनहैप्पी, जस्ट not sympathize, empathize. Okay. When someone is happy, empathize. When someone is sad, empathize. When you empathize, you put yourself in the other person's shoes. When you overthink, you put yourself at a burden कि हाँ मेरे साथ भी ऐसा हो सकता है, हुआ था, होने वाला है, नहीं।
that will put you in more pain. Nobody knows future. Yes. ठीक है. So can you sum up आज का learning? What have you learned today? Okay. So in today's session, I got to know that how to prop correctly, and it is totally understandable that when a person is going through much, we should be there and we should be very aware, and uh, we should ask some we should ask some related questions, not as an interrogation, but as an empathetic person, so that he'll get to know that this person is here to help us, not for the particular thing sales उसके लिए नहीं. And the next one is, यही था बस. and और क्या था, यही था बस. लाइक No. मैं अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाई, बट मैंने सीख लिया जो आपने कराया. ओके, जब आप हाँ. एक्सप्लेन नहीं कर पाए, ऐसा कस्टमर के साथ भी होगा. उसको समझ में आएगा पर आपको बता नहीं पाएगा, देन इट विल क्रिएट कंफ्यूजन कि आप जो समझा रहे हो उसको समझ में आ रहा है कि नहीं. एंड देन यू विल आस्क अगेन सम क्वेश्चन, तो फिर वो इरिटेट हो सकता है. तो इन दैट केस क्या करेंगे? इन दैट मुझसे केस पूछेंगे बीच कि बीच में पूछो. डिड यू हाँ. अंडरस्टूड, हाँ. डिड यू अंडरस्टूड, एम आई क्लियर? यस. क्या आपको मेरी बात बहुत अच्छे से आ रही है समझ, या मैं आपसे अगला सवाल करूं? हाँ. सिर्फ सवाल. या. Got it. I also talked about energies. Okay, I also talked about when you probe, you need to feel that they are your younger brother sisters जिनको genuinely help चाहिए. Okay, डन. हमें अथॉरिटेटिव रहना है बट रूड नहीं होना है. बहुत ही बिल्कुल. फाइन लाइन है. हम्म. ठीक है. So हाँ. that's for today. Okay, and see you in the next session.